Subscribe and press the bell icon to enjoy more exciting and enlightening videos from here. Welcome everyone. Thank you so much for joining us today. Today we have this special webinar on lean manufacturing, which is a methodology that focuses on minimizing waste within manufacturing systems while simultaneously maximizing productivity. Waste is seen as anything that customers do not believe adds value and are not willing to pay for. Some of the benefits of lean manufacturing can include reduced lead times, reduced operating costs, and improved product quality. So let me introduce you to our dear mentor and today's presenter of the webinar, Vasant Pattar sir. Sir is the founder and CEO of Yashasvi Consultants, has more than 20 years of experience in Birla Groups and MNCs. His strength lies in training, developing, and implementing easy to operate systems, effective problem solving, acting as a change agent to bring positive changes in organizations. Conducted soft skills and technical skills training in different domains such as automobile, pharma, chemical, textile, garments, educational institutes, etc. Lead auditor for ISO 9001, 14001, and 45001. Trained more than 5,000 participants. Authoring book on application of lean manufacturing industries. Thank you so much, Vasanta, for taking this very informative and very useful webinar for all of Yeah, us. So, yes, over yes. to you. Thank you so much. Over to you. Yeah, thank you, Preeti. Thank you, Preeti. Welcome, everybody. And thank you for that nice introduction, Preeti. Okay. So, this is my first webinar with Deya on this lean manufacturing subject. Our webinar topic is lean manufacturing. The tagline is much more with much less. Okay. So, we'll discuss these points in this webinar, this webinar. Why lean manufacturing is important? What is lean manufacturing? How to implement lean manufacturing, that means various lean manufacturing tools we discuss. Then what are the benefits of doing this lean manufacturing? Then finally we'll do that recap and question answer session. If you have any questions, just put in qa box. We'll discuss at the end of this session. Okay, so Pritish is already given my introduction. I am the founder and CEO of Yashasvi Consultant, myself Vasant Pattar. I have 20 plus years of industrial experience in Birla Groups and MNCs. And our major training topics are campus to corporate. That means we are conducting these sessions for the college students basically, because when they complete the college, they are not taught what are the skills required in the corporates. So we are addressing this issue to reduce the gap between industries and academia. So campus to corporate, where we are teaching about the job interview facing skills and what are the technical skills required in the corporates, what are the soft skills required in the corporates, so that their job employability will increase, they can face the interview confidently, they can get job easily, and also be successful professional with the corporates. Next topic we do is lean manufacturing or lean six sigma we call. That's for quality improvement and reduction of waste. Another topic is 5S, then problem solving skills, pqm, kaizen, visual management. Internal auditors training also we do, because I'm a lead auditor for 3 systems, that is integrated management system. And along with this we do soft skill trainings also, like communication, stress management, team building, supervisory skills, etc. But in this lean manufacturing, this is a mix of all these concepts. In fact, it's a whole big concept, but I'm trying to compress it as much as possible in the next 1 hour. Okay, so these are the some of our works where we have worked in industries as well as academic institutions. We are covering both simultaneously. Okay, so now we are in a living in an age of VUCA. VUCA, most of the people have not heard it, or some of you might have heard it. The VUCA stands for volatility, V for volatility, U for uncertainty, C for complexity, and A for ambiguity. This is the age of VUCA. Our life is highly volatile. We don't know what is going to happen. इतना उतार चढ़ाव है लाइफ में, पता नहीं कल बहुत अच्छा था, आज खराब हो गया, आज खराब था, बहुत कल अच्छा भी हो सकता है. So high volatility is there. Like you can see petrol prices कितना भी बढ़ते जा रहा है. सेंसेक्स भी एक बार 4-5 हजार पॉइंट गिर जाता है, फिर सडनली उठ जाता है. सो द लाइफ इज वेरी वोलेटाइल. वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. दैट इज अनसर्टेनिटी. मतलब क्या डिसीजन लेने से क्या होता है, दैट वी आर नॉट श्योर. वी आर वेरी अनसर्टन. And because of this, we are facing a lot of complexities in our business as well as in our life. Life means not just professional life, it is about personal life also. So much of complexity, so much of volatility, so much of uncertainty. And because of these 3 things,
there is a lot of ambiguity. मतलब करना तो किया तो करे क्या, we are not sure. मतलब ये किया तो भी प्रॉब्लम है, वो किया तो भी प्रॉब्लम है. So that is the life now. So this age is called as VUCA. So you can search many articles about this VUCA in YouTube also. The current age is VUCA. The best example of VUCA you can say is Corona. Till last March I think nobody has heard of lockdown करके हमको पता भी नहीं था. Social distancing हमको social media पता था, but social distancing हमको मालूम नहीं था. So these are the new terms come up suddenly, मतलब all over the world. Nobody has ever expected in their lifetime, and this is the first time for everybody. Such a VUCA. This is the biggest example of VUCA, I would say. This corona has affected our life, it has affected our livelihood, it has affected our lifestyle. Abhi it will not be same, our life will not be same again. There is a period, we can say that before corona and after corona, so much of difference in the lifestyle also, livelihood as well as life. Similarly, it has affected us physically, economically, psychologically, all over the world. मतलब कि बहुत लोगों को अच्छा भी हो गया because of corona. They are earning in crores. It is a blessing in disguise for them. And many people have lost their jobs, many people businesses have stopped. So much of volatility in the current world you can see because of corona, which we have not never expected this. So what to do in this VUCA age? ये जो इतना uncertainty है, then who will survive in this uncertainty age? It is only the Darwin theory हमने पढ़ा था, survival of the fittest, but now it is not the survival of the fittest, rather it is survival of the quickest and the fastest. कौन आदमी ये सिचुएशन को क्विकली अडॉप्ट करेगा? He may be very fit, but he will not adopt quickly, means he is outdated. He may be very fit, but he will not adopt it fastly, quickly. So outdated हो जाएगा. So it is rather survival of the quickest and the fastest. It's not about the fittest. तो suddenly बहुत लोग हमने देखा है जो job, they might have lost their jobs and they started selling vegetables also. Many we have seen in Belgaum also. They started advocates have started selling vegetables. They adopted quickly because they have to earn livings. So it is the only thing is we have to change ourselves quickly. Then only we will survive. Otherwise, survival will be very difficult in this VUCA age. So to survive quickly or to adopt these conditions, we have to upgrade our skills continuously. अगर skill upgrade नहीं हुआ हमारा, then we will be outdated. Today I may be very highly skilled in particular job, but tomorrow it will be outdated. It may be outdated. So I have to update for the tomorrow also. It is a continuous process. ऐसा नहीं कि मैं आज perfect हूँ, आज top हूँ, वो नहीं चलेगा life में. It is a continuous process. So we have to be skilled always. So be skilled, otherwise before we get killed. So it is a need of the hour now. Skill upgradation, and for skill upgradation, training is the best option. So without training, if you see, we are always firefighting. मतलब हमेशा मतलब we are survival का question होता है. But if we undergo some kind of training is not just कि life classroom training ऐसा नहीं है. It is clear training may be of any kind. Direct face to face बात भी करो, you attend some virtual trainings or actual trainings, on-site trainings, कुछ भी करो, but we have to upgrade our skills continuously. Then only we will be comfortable in life. Training मतलब only technical training भी नहीं है. Whatever skills we are needed, we have to focus on those skills, techniques. We have to get those knowledge. So that is the training. So those who focus on the training, those who focus on gaining more and more knowledge, that person will only survive in this VUCA age. Otherwise, it is very difficult for him. So training is a very important part in our life, and the day webinar we are arranging is a part of that only. It is training as well as sharing knowledge. So we have to be always constant. जैसा पानी बहता रहता है ना, बहता हुआ पानी हमेशा फ्रेश लगता है. पानी रुक गए तो it becomes very stagnant and dirty. We cannot drink that water. So we should be like a flowing water. You can see in the top picture. It's a flowing water. It looks very fresh. The water stagnant हो गए तो क्या होगा? Suddenly it becomes dirty हो जाएगा, stinky smell आ जाएगा. We cannot drink that water. So we should never stop in our life. मतलब भाग सकते हो तो भागो, अगर भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो crawl करो, but you should never stop in our life. We should always keep on moving. Okay, that is the need of the hour now. Now we have to keep learning as well as we have to keep continuously growing. Otherwise, survival is very difficult. So this is basic about the lean manufacturing. Why this is lean manufacturing is important. Now, so what is lean manufacturing? Lean manufacturing is also one methodology which focuses on minimizing the waste and maximizing the productivity.
ये भी एक पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है. अगर हम ये सब इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे देन वी विल नॉट ग्रो इन आवर पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ. दिस कॉन्सेप्ट जो है इट इज एप्लीकेबल बोथ फॉर द प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ. ये ऐसा नहीं कि ओनली कंपनी में काम होता है, मेरा प्रोफेशनल लाइफ में काम आता है, ऐसा नहीं है. इट इज एप्लीकेबल इन आवर पर्सनल. मेनी थिंग्स वी डू अननोइंगली, मतलब यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई भी करते हैं अपने लाइफ में, बट वी डोंट नो कि ये लीन मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, ऐसा नहीं है. We are unaware of that, so we should do it knowingly. So lean manufacturing is a Japanese methodology basically, which focus on reducing the waste and maximizing the productivity. So instead of depending only on technology, it doesn't say कि only technology के ऊपर बड़ा बड़ा मशीन लेके आने का, हाई टेक मशीन करने का, artificial intelligence लगाने को उससे productivity बढ़ता है. It is not like that. Without doing those things also, just by changing our attitude, just by looking at certain wastages, we can improve our productivity quickly. Okay, so instead of depending only on technology, we have to develop more the people strength के ऊपर हमको focus करना पड़ेगा. लोगों को जितना हम use करेंगे, उनका talent को use करेंगे, we can achieve big results. So that's what lean manufacturing focuses basically. Now we know that selling price मतलब it consists of cost as well as profit. एक cost का part होता है, हमको 10-20% we add that profit margin, then we put a sticker of selling price. Now tell me, out of these three parameters, one is cost and profit and selling price, which is under our control. Can we increase profit margin as per my wish? Today I am working at the range of suppose 20% profit margin. कल मुझे 30% margin चाहिए, 30%. Can I change my selling price? I cannot, because market में इतना tough competition है. अगर मैं वो प्राइस बढ़ा के रख देता तो उससे कम प्राइस में देने के लिए बहुत लोग खड़ा है उधर. So I cannot change profit as per my wish. Now selling price also I cannot change as per my wish. अगर मैं बढ़ा दिया तो मेरा क्या होगा? I will lose my customers. So neither profit is in my hand nor selling price is in my hand. Then what is in my hand? ये तीन पैरामीटर में मेरे हाथ में एक ही है, cost. Cost is the only thing which I can control. I cannot control profit because it is market driven. Selling price is also market driven. I cannot put as per my wish. So I have to work only on one parameter, that is called as cost, and that's what lean manufacturing focuses, to reduce your cost. अगर cost का cost of quality बोलो तो there are basically एक good cost होता है, एक bad cost होता है. Good cost मतलब क्या? The cost incurred to manufacture good quality of products, like एक inspection का system हो गया, training of the people हो गया, automation हो गया. These are all good costs which we do to improve the quality. Cost of poor quality मतलब क्या होता है इसमें? This is called as bad cost. What is that bad cost? Bad cost is basically rejections, failures, complaints. These are bad costs which are undesirable. And our focus should be on reducing the cost of poor quality. That means internal failure भी हो सकता है, internal defects हो सकता है, internal rejections हो सकता है, as well as external failure हो गया, external rejections हो गया, customer complaint हो गया. All these things we have to reduce as much as maximum. मतलब हमारा target ये होना चाहिए towards zero defect. Even if it is not possible, but our approach should be towards zero defect. That's what is Six Sigma also says. Now we can see in this picture. So cost एक heavy रहता है. Normally business में क्या होता है? Cost part जो है it is very heavy, profit is very lean. That is before lean implementation. Now what we have to do is we have to convert this first picture situation to the next picture, whereas profit is heavy and cost is light. That is lean. यही टेक्निक को सिंपली बोलते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग. दैट मीन्स जो कॉस्ट मोटा है, हेवी है, उसको पतला कर दो. जो प्रॉफिट पतला है, जो थिन है, उसको बड़ा कर दो. द सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज लीन मैन्युफैक्चरिंग. दैट इज मिनिमाइज द कॉस्ट and minimize the effect. Very simple फंडा है lean manufacturing is you have to minimize the cost. जितना भी अगर कुछ भी अगर पेपर बचने से अगर 10 पैसा बचता है, you focus on that, because gradually क्या होगा, 10 पैसा ऐड होके it becomes in lakhs also. So we have to focus on minimizing the cost as much as possible, wherever possible. When we say lean manufacturing, there are various tools. जैसे हमको एक थाली रहता है, खाना खाते समय ओनली कार्बोहाइड्रेट से काम नहीं चलेगा, ओनली प्रोटीन से काम नहीं चलेगा, ओनली विटामिन से काम नहीं चलेगा. सो फॉर टू बी हेल्दी वी हैव टू हैव ऑल द मिक्सचर ऑफ ऑल दीस थिंग्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस. कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, एवरीथिंग वी नीड. सिमिलरली लीन मैन्युफैक्चरिंग इंप्लीमेंट करने के लिए देयर आर वेरियस टूल्स. देयर इज नॉट वन टूल, देयर आर वेरियस टूल्स.
कुछ लोग बोलते हैं एक ही टूल से होगा क्या? इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम थाली में ओनली चपाती दिए तो कैन बी हमारा हंग्री पूरा हो जाएगा? नहीं, बिकॉज चपाती के साथ हमको सब्जी भी चाहिए, दही भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, पिकल भी चाहिए, छोटा छोटा आइटम रहता है, बट एवरीथिंग मेक्स एक बड़ा अच्छा थाली बनता है। ऐसा ही लीन मैन्युफैक्चरिंग, देयर आर वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग टुगेदर, इट इट मेक्स a great dish, you can say. So what are those tools? I think you can see in the screen now. There are popular some 16 possibilities tools of lean manufacturing. Various tools है, all these have its own importance. ये टूल इंपॉर्टेंट है, दूसरा टूल इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है. Every tool has its own importance and it's a mixture of all these tools together. It's called as lean manufacturing. So there are tools like we have to do 5S, we have to adopt the concept of PDCA cycle, Kaizen, कोका का concept हमको apply करना पड़ेगा. Lean Six Sigma है, SMED single minute exchange of die बोलते हैं, then just in time है, TPM है, visual management है, problem solving tools and techniques we have to apply, ISO systems, this is also very important, MS Excel tools. Excel भी हमको आना चाहिए तभी कि हमारा काम में it helps in doing our work in a better way. So Excel आना भी जरूरी है. Suggestion scheme है, soft skills है, and TQM overall मिला के हम TQM बोलते हैं, total quality management. So these are different tools and techniques by which we can implement lean manufacturing in the organization. Now let's see each concept in brief. थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा because एक घंटे में I have to compress all these things. So it's a mixture of both technical as well as soft skills. If you see these different tools, they are a mixture of technical as well as soft skills. So let us see some technical skills now first. So in the technical skill, first is 5S. 5S is already last week एक webinar भी हो गया through there only. 5S, I don't go deep into that. It is having 5 different concepts like sorting, setting in order, shine, standardize and sustain. ये हमारा लाइफ में रहता है, बट इट इज मोर ऑन सस्टेनेबिलिटी. क्लीन करना एक टाइम का, इट्स नॉट वन डे जॉब और वन टाइम जॉब, इट हैज टू बी सस्टेनेबल. द फिफ्थ एस जो है सस्टेन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू डू इट रेगुलरली, देन ओनली वी कैन गेट very good transformation in the company as well as in our own personal life. So 5S is very powerful concept if you implement it systematically. So I will just talk about only this much about 5S. Next, PDCA cycle. ये भी हम अपना लाइफ में करता है. Plan, do, check, act. That's simple. It is also called as Deming cycle. Plan, do, check, act means what? First we have to plan an improvement. कोई भी चीज करने के लिए हम क्या करते हैं? पहला फर्स्ट किधर भी अगर हमको ट्रिप जाने का है, सपोज वी आर प्लानिंग फॉर वीकेंड ट्रिप अगर जाने का है, व्हाट वी डू फर्स्ट वी प्लान अ डेस्टिनेशन. हमको किधर जाने का भाई, कौन सा डेस्टिनेशन पे जाने का, वो कितना दूर है, कौन सा गाड़ी करने का, ऑल दीज थिंग्स वी डू प्लानिंग. कौन कौन साथ में जाने का, दिस इज व्हाट वी डू प्लानिंग. देन वी कैरी आउट द इंप्रूवमेंट एज पर प्लान. देन हम क्या करते हैं, ट्रिप पे चला जाता है, वी डू दैट एक्टिविटी. आने के बाद हम चेक करते हैं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, हमारा कुछ फेलियर तो नहीं हुआ. So we have to check whether we have whatever we have planned, whether it is executed properly or not. If there is any scope for improvement, then we have to act on that, and that we have to take care in the next planning. So it is a continuous cycle basically. PDCA cycle जो है, it is a continuous cycle. It's not one time activity. हर बार हमको प्लान, ये हम नॉर्मली अपना डे टू डे लाइफ में भी हम करते रहते हैं, बट अननोइंग की PDCA साइकिल है करके. सो दिस वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट है. सो वी हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. पहले जो भी है प्लान करो, सिस्टमेटिकली एग्जीक्यूट करो, then verify karo whether it is moving as per planning or not. If anything you want to do or improvement, then you take action on that. So that is a act. So PDCA cycle, that concept we have to apply in our daily life. Next, we need not focus on large improvements. मतलब हमको लगता है कोई इंप्रूवमेंट करने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना ही जरूरी है. दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट करना है, यू नीड नॉट डू बिग इन्वेस्टमेंट, बिग मशीनरी, बड़ा बड़ा चीज लाने की जरूरत नहीं पड़ता. छोटा छोटा चीज करने से भी we can achieve large improvement. Now you can see a ladder in this picture. Ladder का अगर steps छोटा छोटा है तो then we can easily climb the ladder without tiredness. बिना थकान करके हम आराम से ऊपर चढ़ सकते हैं. अगर ladder का steps बड़ा बड़ा है, सीढ़ी का steps बड़ा है, तो हमको क्या होगा? It is very difficult to climb as well as we get tired quickly. We will not achieve our improvement. Similarly हमारा लाइफ में भी यही होता है. छोटा छोटा चीज को हमको फोकस करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ बिग इंप्रूवमेंट्स, बिग प्लानिंग, फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स.
So small steps will result in a big improvement. That's what Kaizen concept is. Kaizen ये नहीं बोलता कि आपको बड़ा मशीन लेके आने का, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का, हाईटेक कुछ नहीं जरूरत नहीं. जो existing setup है, with that only we can achieve around 20-30% as it is improvement हो जाएगा. If we change our attitude, if we focus on the wastages wherever the scope of improvement है. So what Kaizen says is focus on large number of small improvements. जैसा हम बोलते हैं बूंद बूंद मिलके सागर बनता है. It is like that only. So small improvements result in a big transformation in the organization or even our personal life also. So that's what the Kaizen says. The first, some Kaizen pictures which are carried out in the industry, it may be relevant to some people also. Just I will show some pictures. You can see that the person was carrying packages. पहला हाथ में लेके जाता था, गिरने का चांसेस था. फिर हमने क्या किया, उसको एक स्टैंड बना के दे दिया. नाउ ही कैन टेक एनी पैकेजेस, मतलब 10-15 पैकेजेस आराम से दो हाथ में भी लेके जा सकता है. क्या इन्वेस्टमेंट किया? कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया. एक रॉड बना के दे दिया उसको, स्टैंड बना के वर्कशॉप में. बट द रिजल्ट वाज वेरी ट्रेमेंडस. पहला क्या होता था, बहुत सारा पैकेज डैमेज होता था, गिर जाता था, वो आदमी भी गिर जाता था, थकान हो जाता था, और 10 पैकेज के लिए बार बार आना पड़ता था. नाउ इट हैज मेड हिज वर्क वेरी इजी. सो सिंपल काइजन यही होता है, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करने का, छोटा चेंजेस करने का, विच रिजल्ट्स इन बिग इंप्रूवमेंट. तो कोई अब सामान वगैरह हम बॉक्स में अगर फेंका रहता है तो क्या होता है, इवन घर में भी देखो आप, घर में किचन का सामान अगर एक ही इसमें बाल्टी में सब डाल दिया तो एक स्पून भी नहीं मिलेगा, एक चाकू जो ये नहीं मिलेगा, अलग अलग टाइप का स्पून नहीं मिलेगा. अगर वही हम रैक में रख देते तो क्या होगा, हमको वी गेट देम इजीली, वी आइडेंटिफाई देम इजीली. सो वी हैव टू मेक सम अरेंजमेंट्स. इट्स अ वेरी सिंपल काइजन, बट हमारा काम आसान हो जाएगा. जैसे एक सिलेंडर रहता था पहले, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑर्गेनाइजेशन में, वो हर बार गिरता था बिकॉज ऑफ इट्स बहुत वर्टिकल रहता तो गिर जाता था, लंबा, इट्स वेरी लॉन्ग सिलेंडर. हमने एक रॉड लगा दिया तो क्या होगा, गिरने के चांसेस बंद हो जाएगा. जस्ट बाय पुटिंग वन रॉड द चांसेस ऑफ फॉलिंग इज एलिमिनेटेड. दिस इज काइजन, सिंपल टेक्निक है, बट इट हैज गिवन मोर रिजल्ट. बट सिलेंडर गिरता तो क्या हो सकता था, देयर आर चांसेस ऑफ ब्लास्ट आल्सो, सिलेंडर ब्लास्ट भी होने का चांस है. सो सेफ्टी भी इंप्रूव हो गया जस्ट बाय पुटिंग वन रॉड आल्सो. स्मॉल थिंग है, बट इट हैज रिजल्टेड इन अ बिग इंप्रूवमेंट. जैसा एक वर्कशॉप में देखो, मेंटेनेंस करते हुए आदमी पहले चेयर पे मेंटेनेंस करता था, मतलब उधर वो एंड ऑफ मशीन से ये एंड तक वो साफ करते आता था. अभी के हर बार चेयर को सरकाना पड़ता था उसको, और टूल बॉक्स को भी. देन व्हाट इज गिवन, वी हैव गिवन वन ट्रॉली टू हिम so that he can easily slide on the trolley. He can keep all his toolbox on the trolley itself easily. उसका टाइम भी बच गया, काम करने का एफिशिएंसी भी बढ़ गया. So this is lean manufacturing, काइजन हो गया. छोटा छोटा चीज है, but it has given big improvements. You can see this also, just photos, because these are some relevant to you in anywhere. That's why I'm showing some pictures to you. जो बार बार कैरी करना पड़ता था, केमिकल का बीकर है, अभी हमने 10 बीकर के लिए उसको 5 बार आना जाना पड़ता था. What we have done is we have made one stand for it. उसको स्टैंड बना के दे दिया, 10 बीकर एक ही बार उसमें लेके जा सकता है, तो उसका आना जाना भी बंद हो गया, ट्रैवल टाइम कम हो गया, मोशन कम हो गया उसका. सो इससे क्या होगा, उसका एफिशिएंसी बढ़ गया, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया अल्टीमेटली. सो दिस व्हाट इज काइजन. We have to focus on little things which results in big improvements. Now you can see this spanner है, he is tightening the spanner. हर बार बैठ के करना पड़ता था, तो टाइटनिंग करना पड़ता था, उसका एफिशिएंसी डाउन हो जाता था, बैक पेन होता था. नाउ ही कैन डू दिस टाइटनिंग ऑफ द बोल्ट स्टैंडिंग ओनली. एक लंबा हमने एक वेल्ड करके दे दिया उसको, देन ही कैन डू इट इजीली. I think this picture you might have seen in WhatsApp also during lockdown time, social distancing. क्या होता था, this very creative idea. You can see this very Kaizen. मतलब नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, he can वो उधर से सामान डाल दिया तो पाइप से इधर आ जाता था. एक सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो गया. नाउ कितना आसान है देखो तरीका. एक दूध भी कैसा कर रहा है देखो एक आदमी. These are all done Kaizens during the lockdown, which are invented during the lockdown time. I think this is also an important Kaizen. अभी हर बार हम अपना वेस्ट कम कितना हुआ देखते हैं ना, हर बार टेप से मेजर करके देखते हैं. अगर बेल्ट ऐसा रहेगा तो क्या होगा, he can easily see as 95 है, 93 है, 94 है, 96 है. We can easily come to know मेरा वेस्ट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है करके, राइट. कितना क्रिएटिव आइडिया है, बट इट्स अ काइजन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बट सिंपल टेक्निक्स है, बट इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस. नाउ यू कैन सी दिस हैंड वॉश. इतना करके करके हमने पानी वेस्ट कर देता है. इसमें क्या किया अभी, नाउ
वॉश बेसिन उधर ही रख दिया, जो फ्लश टैंक रहता है उधर ही रख दिया, तो हैंड वॉश का जो सोप वाटर रहता है इट इज कलेक्टेड इन द फ्लश टैंक ओनली एंड इट इज यूज्ड फॉर द फ्लशिंग ओनली। तो वाटर सेविंग भी हो गया एंड फ्लशिंग भी अच्छा तरीके से हो जाए, क्योंकि इट्स कंसिस्ट ऑफ सोप वाटर, सो फ्लशिंग इज आल्सो वेरी गुड। छोटा सा आइडिया है बट इट मेक्स ह्यूज इम्पैक्ट। सो वी हैव टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। हम हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करना चाहिए, वी हैव टू बिलीव इन स्मार्ट वर्क। इट्स द एज ऑफ स्मार्ट वर्किंग नॉट हार्ड वर्किंग। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक पसीना बहा के काम करने का, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट नेसेसरी आल्सो। वी हैव वेरियस टूल्स एंड टेक्निक, वी हैव वेरियस टेक्नोलॉजी आल्सो, वी हैव टू यूज दैट टेक्नोलॉजी, वर्क स्मार्टली। गधा मजदूरी जैसा वो नहीं करने का कि हर बार मतलब मेहनत इन अ सेंस स्मार्ट वर्किंग में मेहनत होना चाहिए, नॉट जस्ट हार्ड वर्किंग। दीज आर ऑल स्मार्ट वर्किंग टेक्निक्स। नाउ इन द लीन मैन्युफैक्चरिंग there are mainly 8 kinds of wastages. ये हार्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग है। सो 8 वेस्टेजेस क्या होता है, ये नॉर्मल अपना लाइफ में भी लागू होता है, अपना डे टू डे लाइफ में भी काम आता है। जैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसा मैंने अपने काइजन दिखा दिया, ट्रांसपोर्टेशन होता है हर बार वो घूम रहा है, अगर एक चीज के लिए 10 बार घूम रहा है, दैट्स अ ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, इट इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू एंड कस्टमर इज नॉट पेइंग फॉर सच वेस्टेजेस। इफ यू रिड्यूस दोस अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेजेस, क्या होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जैसे अगर किचन में एक सामान हम रखता है, चाय का पत्ती एक जगह रखा है, शक्कर के दूसरा जगह रखा है, तो क्या होगा, एक चाय लाने के लिए, शुगर लाने के लिए एक जगह जाना पड़ेगा, टी पाउडर लाने के लिए एक दूसरा जगह जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अननेसेसरी अपना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। इफ यू कीप देम टुगेदर एंड नियर टू द गैस ओनली, बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली लगता है, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगा। इट इंप्रूव्स आवर एफिशिएंसी, इट रिड्यूसेस टाइम कंजम्पशन। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है, इट अप्लाइज इन आवर डे टू डे लाइफ आल्सो। सो अगर हम ये ट्रांसपोर्टेशन अननेसेसरी में ट्रांसपोर्टेशन किधर कर रहा है, हाउ आई कैन minimize or avoid that transportation, if you think on that, we can save a lot on that wastages also. These are the 8 wastages. Next wastage is inventory. Inventory, अगर हम घर पे भी हम क्या इन्वेंटरी रखते हैं, नॉर्मली जो हम इन्वेंटरी, ऐसे सब्जी अगर हम देखोगे तो हम मैक्सिमम क्या 3-4 दिन के लिए जो होता है उतना ही सब्जी लेके आता है, अदरवाइज हम ज्यादा इन्वेंटरी रखेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी आल्सो। सो वी कीप मिनिमम इन्वेंटरी। बाकी जो है जैसा राइस है, आटा है, वो एक आध महीने का लेके आता है, हर मंथली ग्रोसरी में हम लेके आता है। कुछ कुछ चीज ऐसा रहेगा कि पिकल वगैरह हम साल में एक बार बना के रख देते हैं, बिकॉज वो खराब भी नहीं होता, वो हर बार बना भी नहीं सकता। सो वी हैव टू कीप इन्वेंटरी ऑफ सच आइटम्स डिपेंडिंग ऑन देयर लाइफ एज वेल एज अवेलेबिलिटी। जो चीज रोज इजीली मिलता है, वही वी हैव टू कीप दैट इन्वेंटरी। ये ऑर्गेनाइजेशन पे भी वही होता है, अननेसेसरी वी कीप इन्वेंटरी मींस मनी इज ब्लॉकिंग देयर एंड दैट्स अ व्हाइट, सफेद हाथी बोलते हैं, इन्वेंटरी इज नथिंग बट इट्स अ व्हाइट एलिफेंट। वी हैव टू फोकस ऑन रिड्यूसिंग द इन्वेंटरी, अदरवाइज क्या होगा, हमारा पैसा अटक जाता होगा। मोशन है, मोशन इज अगेन अननेसेसरी, जो बॉडी मूवमेंट होता है, बॉडी स्ट्रेन होता है, दैट इज इट इज रिलेटेड टू मोशन। जैसा मैंने आपको एक काइजन में दिखा दिया, केमिकल बीकर 10 बार आना जाना कर रहा हो, एक तो ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, उसका खुद का भी मोशन ये हो जाता है, फिजिकल मूवमेंट भी ज्यादा हो जाता है, इट इंक्रीजेस हिज स्ट्रेन आल्सो। सो ये स्ट्रेन को हम कैसा कम कर सकता है, अगर हम घर पे हम देखेंगे, कोई सामान है हर बार जो डेली लगने वाला है, मैं बहुत ऊपर रख दिया, रैक पे, टॉप रैक में रख दिया, तो क्या होगा, हर बार मुझे स्टूल रख के लेना पड़ेगा, इट इंक्रीजेस माय फैटिग, इट इंक्रीजेस माय एर्गोनॉमिक, इट कॉजेस माय एर्गोनॉमिक इश्यूज आल्सो। सो वी हैव टू अवॉइड सच थिंग्स इन आवर डेली वर्क, जिससे मोशन अपना कम हो जाए, अपना फैटिग कम हो जाए, अपना स्ट्रेन कम हो जाए, इससे क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वेस्टेज इज वेटिंग। वेटिंग मींस कोई भी चीज में रुकावट होता है, इट मे बी वेटिंग फॉर एन एडिशन, इट मे बी वेटिंग फॉर एनी मटेरियल, वेटिंग फॉर मशीन, कोई भी चीज अगर रुक जाता है, फ्लो नहीं होता, दैट इज अ वेटिंग। अगर हमारा सब रेडी है बट साहब ने मुझे परमिशन नहीं दिया, दैट्स अ वेटिंग, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। वो वेस्टेजेस जो होता है, ये वेस्टेज को हमने अवॉइड करना पड़ेगा लाइफ में, इवन कॉर्पोरेट में, अदरवाइज पर्सनल लाइफ में भी। अगर खाना बना रहे आप लोग, खाना बनाते बनाते हमको लगा कि एक आइटम नहीं है उसमें, चाय बना रहे हो, सपोज चाय बनाते शक्कर है बट टी पाउडर नहीं है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेंड समबडी टू ब्रिंग टी पाउडर, टिल दैट टाइम आई हैव टू वेट फॉर 10-15 मिनट्स, इट्स अ वेटिंग। अगर मैं उसको पहले ही देख के अगर मैं मेंटेन करता था इन्वेंटरी वगैरह, तो वेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता था। सो कोई भी चीज का रुकावट होता है, आइदर बिकॉज ऑफ मैन, मटेरियल, मशीन, कोई भी चीज के लिए डिसीजन कुछ भी हो, दैट वी हैव टू अवॉइड। इससे क्या होगा, हमारा कॉस्टिंग बहुत कम होता जाएगा। नेक्स्ट इज ओवर प्रोसेसिंग। कोई भी चीज को जो एक्स्ट्रा प्रोसेस करते हैं हम लोग, इट इज अ वेस्टेजेस, मतलब कस्टमर को जितना चाहिए उतना ही देने को, उससे ज्यादा भी अगर हम देता है, और विच इज नॉट पेइंग, दैट्स आल्सो ओवर प्रोसेसिंग, इट इज नॉट रिक्वायर्ड आल्सो, इट कॉजेस वेस्टेज, टाइम, सब कुछ वेस्ट हो जाता है हमारा।
या इवन अगर आप ओवर प्रोसेसिंग बोलो तो घर का अगर एग्जांपल देता हूं मैं, अगर हम चपाती बना रहे हैं, चपाती बनाते समय हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम कितना तक उसको गर्म करते हैं, जो नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको गर्म होने तक ही करता है। ज्यादा ओवर हीट किया तो क्या होगा, ओवर प्रोसेस किया तो इट बिकम्स ब्लैक, रोस्ट हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक होके इट बिकम्स वेस्टेज आल्सो। सो वी शुड नॉट ओवरहीट इट, ओवरहीट से क्या होगा, इट्स अ वेस्टेज आल्सो। सो वी हैव टू हीट व्हाट हाउ मच इज नीडेड, अदरवाइज इफ यू डू इट ओवर प्रोसेसिंग इट कॉजेस अस वेस्टेज। तो गैस भी नुकसान हो जाएगा, हीट भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, एवरीथिंग, एंड चपाती भी वेस्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली इट्स अ वेस्टेज ओनली। सो वी हैव टू अवॉइड ओवर प्रोसेसिंग। कोई भी चीज है जितना चाहिए उतना ही प्रोसेस करने का, वी हैव टू मिनिमाइज ओवर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वेस्टेज इज ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन मतलब जरूरत से ज्यादा बना के रख देने का। अगर कस्टमर को सपोज कोई भी चीज का 100 पीस का ऑर्डर है, इफ यू मेक इट 120 पीसेस, तो कस्टमर तो 100 ही लेगा, तो 20 क्या होगा, हमारे इन्वेंटरी में पड़ा रहेगा। ओके, सो दैट इज अ ओवर प्रोडक्शन, अगेन इट्स अ लॉस ऑफ मनी। घर का एग्जांपल अगर मैं वही चपाती का लेता हूं, अगर हम घर में 4 लोग हैं, मैक्सिमम कितना चपाती खाएंगे, दो दो पकड़े तो 8 चपाती खाएंगे, मैक्सिमम 10 चपाती। 10 चपाती बनाए तो बराबर खत्म हो जाएगा। अगर हम 4 लोगों के बीच में अगर 20 चपाती बना के रख देता है, क्या होगा उसमें, 10 चपाती तो ऐसे ही बन जाएगा, ओवर प्रोडक्शन हो गया, जो जरूरत नहीं था। फिर शाम को या नेक्स्ट डे कोई खाएगा नहीं, देन हम क्या करेंगे, या इधर काम वाली बाई को दे देंगे उसको। इट्स ओवर प्रोडक्शन, इट्स अ वेस्टेज। पैसा भी खर्चा हो गया, आटा भी गया उसमें, टाइम भी गया, गैस भी गया, सब कुछ गया। It's giving us no value. So we have to avoid overproduction. Defects. कोई भी चीज में अगर डिफेक्ट होता है तो we have to reject it because we cannot give it to customer. चपाती का वही एग्जांपल, चपाती अगर ओवरहीट हो गया तो क्या होगा, it becomes a defective चपाती. We cannot eat that. So we have to avoid such defective pieces. Okay. Now last is skill. ये सबसे बड़ा वेस्टेज है। आउट ऑफ दीज वेस्टेज 8 वेस्टेजेस, स्किल्स इज द टॉप वेस्टेजेस। स्किल्स नॉट यूज्ड। कोई भी आदमी का स्किल अगर हम कंपनी में अगर यूज नहीं होता, दैट्स द बिगेस्ट वेस्टेज। वो आदमी टैलेंटेड है, कारपोरेट इज नॉट यूजिंग दैट टैलेंट। अदरवाइज people are trained but they are not using those skills also in their life also, that is also waste of skill। अगर हम स्किल के ऊपर हम काम करेंगे, ये वेबिनार इज also about to enhance our skills, okay, and apply this knowledge। it's not only about gaining knowledge, it is about application of knowledge। बहुत लोग फेल किधर होता है, इधर ही फेल होता है, स्किल्स में। they have knowledge, अगर उनको पूछे तो सब बताएंगे, but they are not applying it। unless we apply it, it is of no use, as good as no skill। so स्किल एप्लीकेशन में फेल हो जाता है। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, अपना खुद का भी लाइफ देखो, हम बोलते हैं मुझे मालूम है यार, बट आई एम नॉट अप्लाइंग इट। सो स्किल वेस्टेज है, दिस इज द टॉप मोस्ट आउट ऑफ दिस इज द टॉप मोस्ट वेस्टेजेस। सो ऑल दीज वेस्टेजेस है, दीज आर एप्लीकेबल इन आवर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। इनको याद रखने के लिए इजी टेक्निक है, टीम मोड्स। टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आई फॉर इन्वेंटरी, एम फॉर मोशन, ओ फॉर ओवर प्रोडक्शन, ओ फॉर ओवर प्रोसेसिंग, डी फॉर डिफेक्ट, एस फॉर स्किल्स। ये चीज के ऊपर अपन ध्यान रखेंगे तो वी कैन मिनिमाइज दीज वेस्टेजेस, एंड दिस इज द हार्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। ये कॉमन अपना पर्सनल लाइफ में भी ये लागू होता है, अपना अपना लाइफ में चाहे तो शाम को बना के बैठ के देख लो, लिखते जाओ क्या क्या वेस्टेजेस हो रहा है मेरा ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड, इन्वेंटरी रिलेटेड। यू विल कम टू नो, यू कैन स्टार्ट सेविंग मेनी थिंग्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। I will challenge you that. Okay, you can apply that. Next concept is Six Sigma. Six Sigma is also very popular concept in the organization. What is Six Sigma means? Just you can see this one Sigma level is performance is our efficiency is 30%. 2 Sigma is 69%. 3 Sigma level is 93% efficiency. 4 Sigma level is 99% efficiency. 5 Sigma level is 99.98%. And 6 Sigma level you can see is 100%. ये 5 Sigma क्यों नहीं बोलता, 6 Sigma ही क्यों बोलते हैं इसको? As per statistics, you can see that at 6 Sigma level, the efficiency is 100%, but even at 5%, the efficiency is 99.98. That means हमारा जो approach होना चाहिए हमारा working में, अपना life में, we have to work towards perfection, towards zero defect. That should be the approach. It may not be possible, live it, but that should be the approach. इसलिए 6 Sigma, the concept is very very popular in the industry. Need not necessarily कि हर चीज में 100% होता है, जरूरी नहीं है, possible भी नहीं रहेगा, forget it. But work towards 100%. Suppose your efficiency is in the range of, suppose कोई भी आदमी स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट है, he may be regularly getting around 70% marks. What he can try is he can try to get around 90% marks. 3 Sigma लेवल पे वो improve हो सकता है। कैसा हो सकता है?
रेगुलर स्टडी करो, रिवीजन करो, बार बार उसको रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते जाओ, he can improve his scores from 60 to 70 to 1993. then उसका क्या होगा, सिग्मा लेवल इंप्रूव हो जाएगा. He will not get 100%, but at least he will get 95%, 93%, 90%. That is sufficient because he is moving towards perfection. That is important. अगर हम 60 से 65 भी होता है, that is no problem. 65 stabilize करो, then move towards 70%, stabilize it, then move towards 75%. It is, our approach should be like that. We have to move towards perfection. That is the Six Sigma approach. Okay, forget about 100%. मतलब अचीव होता है या नहीं, forget about that. Try to improve, gradual improvement की तरफ हमको focus करना पड़ेगा. Six Sigma basically focuses on the data. Data के बिना Six Sigma project we cannot do. Data मतलब क्या होता है, अगर हम मेरे पास data नहीं है तो I cannot do analysis. If I cannot do analysis, I cannot take action. If I cannot take action, I cannot do any improvement. So हमको improvement करने के लिए what we have to have is first we have to measure it and have the data. सपोज अगर हम डेटा नहीं है तो क्या होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. किसी को अगर बीपी है तो क्या होगा, चक्कर आ जाएगा. अगर वो डॉक्टर के पास गया, वो बोलेगा साहब डॉक्टर मुझे चक्कर आ रहा है. अगर डॉक्टर बोलेगा यार तुमको शायद हाई बीपी हुआ है इसलिए चक्कर आ रहा है करके बीपी कम करने के लिए उसने गोली दे दिया विदाउट चेकिंग. आई एम टेलिंग यू, विदाउट चेकिंग इफ ही गिव्स टैबलेट टू रिड्यूस द बीपी, बाद में अगर चेक करके देखेगा तो एक्चुअली उसको लो बीपी था, तो क्या चाहिए था उसको, गोली. लो बीपी से उसको बीपी बढ़ाने के लिए टैबलेट चाहिए था, डॉक्टर ने क्या दे दिया, विदाउट मेजरिंग ही गिव कम करने के लिए दे दिया. तो आदमी क्या क्या होगा कंडीशन, जो और कुछ दिन जीने वाला था तो अभी राम नाम हो जाएगा. सो मेजरमेंट नहीं हो तो नहीं किया तो हमको ये फैटल डिसीजन हो सकता है. सो कोई भी चीज लेने से अच्छा, डिसीजन लेने से अच्छा, फर्स्ट वी हैव टू मेजर इट. फॉर मेजरिंग वी शुड हैव अ डेटा. डेटा से एनालाइज करो, फिर एक्शन ले लो, देन मेजर द इंप्रूवमेंट. सो डेटा मेजरमेंट इज वेरी वेरी इंप्रूवमेंट. इवन हमारा रेगुलर लाइफ में भी हम क्या करते हैं, कोई अगर हम घर ले रहा है, कार ले रहा है, व्हाट वी डू, फर्स्ट वी मेजर इट. मतलब मेरा सेविंग पोटेंशियल कितना है, मेरा ईएमआई कितना होगा, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ. मेरा इतना सेविंग है तो आई कैन अफोर्ड ऑल्टो कार अफोर्ड कर सकता हूँ या होंडा कार कर सकता हूँ या बेंच कर सकता हूँ. इट ऑल डिपेंड्स माय मेजरमेंट, कितना सेविंग पोटेंशियल है. अगर मैं वो करूंगा नहीं है तो क्या होगा, तो मैं लोन ले लूंगा तो आई कैन नॉट फुलफिल माय ईएमआई. तो ये होता है. तो वी हैव टू मेजर, फॉर दैट वी हैव टू हैव अ डेटा. सो सिक्स सिग्मा फोकसेस ऑन डेटा. बेस्ड ऑन डेटा ओनली वी हैव टू टेक डिसीजन. सो लीन जो है 8 वेस्टेजेस है एंड सिक्स सिग्मा विद डेटा बेस्ड अप्रोच. Together it is called as Lean Six Sigma. There is a very popular concept in the organization. Lean as well as Six Sigma. One is data based and Lean is observation based, where we are focusing on 8 wastages. Together it is called as Lean Six Sigma. Okay. Now the next important concept towards lean manufacturing. These tools and techniques mainly for cost reduction. I have told in the beginning itself. Whatever we are talking is how we have to improve our efficiency, how we can minimize the cost so that maximize the profit. Now one concept is SMED बोलता है इंडस्ट्री में. SMED is simply single minute exchange of die, but this is basically change over time. कोई भी चीज का अगर change over time ज्यादा हो रहा है, then it's a waste of loss of efficiency, loss of productivity. अगर एक पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये फार्मूला 1 गाड़ी है. In how many seconds they change all the 4 tires, you know? वो गाड़ी जो आता है रुकता है, within 2.7 seconds all these people together, ये टीम वर्क होता है, all these people together they change 4 tires, replace new tires, filling होता है, oil filling भी होता है, सब कुछ होता है, then within 2.7 seconds में गाड़ी चला जाता है. इसमें अगर 3 सेकंड भी हो गए तो there are chances of losing the race. कितना क्रिटिकल होता है देखो, चेंज ओवर टाइम. ये होता है एसएमएडी. सो वेरेवर हमको जो प्रोसेस में चेंज ओवर टाइम ज्यादा लगता है, वी हैव टू फोकस ऑन रिड्यूसिंग द चेंज ओवर टाइम. एक घर का एग्जांपल अगर मैं देता हूँ, चेंज ओवर टाइम जो लेडीज का नॉर्मली हम बोलते हैं ना, चेंज ओवर, ड्रेस चेंज ओवर में रेडी होने के लिए कितना टाइम लेता है नॉर्मली, 2-3 घंटा लेता है. हम बॉयज कितना लेते हैं नॉर्मली, 10-15 मिनट में शर्ट पैंट चेंज करके आता है. नॉर्मली हम घर में बोलते हैं टेक इट इन अ लाइटर वे, ओके, बट लेडीज व्हाट दे डू, दे टेक 2 to 3 hours to change. That's it, their change over time. अगर एक ड्रेस चेंज करके दूसरा ड्रेस पहन के देखेंगे, फिर वो नहीं है तो दूसरा तीसरा करेंगे, तीसरा नहीं तो चौथा करके 1-2 घंटा लगाता है. So that is a change over time. Okay, this is a human. On lighter side I have told this example. Okay, ladies don't take it otherwise. Next concept is just in time. This is also very important concept. Just in time मतलब हमको ऐसा नहीं कि जैसे मैं सब्जी का भी एग्जांपल दे दिया,
हम सब्जी ऐसा नहीं कि महीने भर का एक सब्जी लाके घर पे रखता नहीं हम लोग, बिकॉज ला के रखे तो क्या होगा, एक तो पैसा खर्च हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, एक महीने तक टिके नहीं रहेंगे, खराब हो जाएगा, खराब हो तो पैसा भी खर्च हो जाएगा। जब सब्जी इमिडिएटली अवेलेबल है, आजू बाजू में अवेलेबल है, व्हेन आई कैन गो एंड पिक इट, सुबह सुबह चाहिए तो 15 मिनट में ला के रख सकता हूँ, तो व्हाई आई शुड कीप दैट इन्वेंटरी। सो कोई भी चीज होता है, वी हैव टू फोकस इन जस्ट इन टाइम, मींस मैनेज व्हाट इज नीडेड, when it is needed and only how much needed. Don't unnecessarily keep it extra. जितना हम एक्स्ट्रा रखेंगे कोई भी चीज है, वो पैसा नुकसान हो जाएगा, एक तो वेस्टेज हो सकता है एंड पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा। सो जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट उतना ही है, वी हैव टू मैनेज व्हाट इज नीडेड, when it is needed and only how much needed. Okay, another concept, very important lean concept is TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस बोलता है। कोई भी मशीन है, मशीन को अगर हम अच्छा तरह से मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, डज इट गिव एनी एफिशिएंसी टू अस? नया नया है तो अच्छा काम करता रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इफ यू डोंट मेंटेन इट, व्हाट हैपेंस, ग्रेजुअली मशीन प्रॉब्लम करना चालू कर देगा। अगर हम उसको टाइमली ऑयलिंग भी नहीं करेंगे, अगर मशीन ऑपरेट करना भी हमको हमको आता नहीं, तो क्या होगा, मशीन धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ओके, सो वी हैव टू मेंटेन द मशीन्स सिस्टमेटिकली, प्रॉपर मेंटेनेंस भी होना चाहिए, वो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से आता है बेसिकली। अगर घर का भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, घर का वॉशिंग मशीन है, वी डू एएमसी, तो हर 6 महीने में आके वो करके जाता है, पूरा ऑयलिंग करके जाता है, चेक करके जाता है। व्हाई वी डू दैट, वी गिव एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट क्यों देता है, सो दैट मशीन का लाइफ बढ़ जाए, इट गिव्स मोर आउटपुट। अदरवाइज हम एएमसी नहीं देंगे 2-3 हजार बचाने के लिए, हम अगर हम एएमसी नहीं दे देंगे तो क्या होगा, 2-3 साल में मशीन भी बैठ जाएगा, फिर नया मशीन लेना पड़ेगा। सो बेटर मेंटेन द मशीन प्रॉपरली। सो ये जो भी होता है, इट इज एप्लीकेबल इन आवर पर्सनल डे टू डे के साथ में लिंक करके देखो, ये सब एवरीथिंग इज एप्लीकेबल इन आवर डेली लाइफ आल्सो। अगर एक सिलाई भी का मशीन भी होता है घर पे, व्हाट वी डू, द लेडीज डू दैट, रेगुलर ऑयलिंग भी करता है, उसको क्लीनिंग भी करता है, नीचे जो बॉबिन होल्डर है उसको क्लीन करना पड़ता है, ऑयलिंग करना पड़ता है, एवरीथिंग, एंड उसको ट्रेन भी करना पड़ता है। शी शुड बी ट्रेन टू हैंडल दैट मशीन। अगर कोई भी जाके मशीन को ऑपरेट किया तो क्या होगा, मशीन भी खराब हो जाएगा, नीडल टूट जाएगा। सो टीपीएम में क्या होता है, वी हैव टू ट्रेन द पीपल, they have to be positive mindset होना चाहिए, proper maintenance होना चाहिए, everything has to be maintained, then we can improve the productivity of the machine. That's what is TPM is. Next एक lean concept है, lean tool है, that is visual communication. That is also very important concept. Visual मतलब क्या होता है, visual में there is no need to किसी को कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, देख के समझ में आ जाता है कि ये क्या बोलना चाहता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में, अगर हम ट्रैफिक सिग्नल में फंसते तो क्या होता है, उधर 3 लाइट रहता है, रेड ग्रीन येलो। कोई बोलता है क्या, रेड आए तो यार तुम चलो चलो, ग्रीन आए तो चलो बोलता है, रेड आए तो रुको बोलता है क्या? नो नीड टू टेल, जस्ट बाय सीइंग द रेड लाइट ओनली वी विल कम टू नो दैट रेड आए तो रुकने का, ग्रीन है तो जाने का। दिस इज विजुअल मैनेजमेंट। हमारा गाड़ी का इसमें देखो, फ्यूल खत्म होता है, हमको कैसे पता चलता है कम हो रहा है करके, दिस इज विजुअल मैनेजमेंट। डिस्प्ले रहता है उधर, और डिस्प्ले देख के वी टेक एक्शन। अगर एंड पे आ रहा है तो हमने फ्यूल भर देता है। मॉल में अगर हम जाता है, मॉल में किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ता हमको, बिकॉज एवरीथिंग इज डिस्प्लेड प्रॉपर्ली। कौन सा सेक्शन है, ये किड्स का सेक्शन है, लेडीज का सेक्शन है, क्या ड्रेस ग्रोसरी का सेक्शन है, ग्रोसरी में भी सोप्स एंड इसमें है, क्या क्या सेक्शन है, एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली रिटन एंड डिस्प्लेड देयर। दिस इज विजुअल मैनेजमेंट। अगर हम शॉप फ्लोर पे ऑर्गेनाइजेशन में बात करता है, एवरी ग्राफ्स, परफॉर्मेंस ग्राफ चार्ट्स अगर हम डिस्प्ले कर देते हैं, एवरीबॉडी विल कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी। मेरा परफॉर्मेंस क्या है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या है, मशीन का परफॉर्मेंस क्या है, डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस क्या है, एवरीथिंग इज डिस्प्लेड इन द शॉप फ्लोर। ग्राफिकल डिस्प्ले होता है। इससे क्या होता है, इससे इजी टू एनालाइज, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू टेक एक्शन। ओके, सो विजुअल कम्युनिकेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मार्किंग किया रहता है, रास्ते पे मार्किंग किया रहता है पार्किंग का, दैट्स विजुअल कम्युनिकेशन। कार पार्किंग का जैसे हम रास्ते पे देखते हैं ना, इट कम्युनिकेट्स इजीली, मतलब कोई बोलता नहीं कि इधर पार्किंग करो, देख के हमको समझ में आ जाता है ये पार्किंग लाइन है, इतना ही तक कि हमको पार्किंग करने का करके। सो ऑल दीज आर टूल्स एंड टेक्निक्स which helps in improving the productivity as well as reducing the cost. Next tool is problem solving skills. Problem means everybody will have some kind of problem, personal life हो या professional life. अगर problem है, that means there is a solution, and every problem, ऐसा बोलता है, every problem has 2 solutions, minimum 2 solutions. So we have to have that problem solving skills. ये बहुत जरूरी है, otherwise हम क्या होता है, we are always crying about the problem, cry कर रोते रहना पड़ता है. So we have to always learn the problem solving skills. There are basically
सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जैसा कि वाइवा एनालिसिस है, 5W1H है, पोका परेटो एनालिसिस, brainstorming, Lean Six Sigma, and 7QC tools. These are important problem solving tools. Just एक एक हम देख लेंगे. Already Lean Six Sigma हमने देख लिया. Other tools we will just see. Viva analysis. Viva analysis is also very very popular in the industry. ये अपना हम खुद का पर्सनल लाइफ में भी हम यूज करते हैं. कोई भी चीज होता है, जनरली हमारा क्या होता है, जैसे अगर बच्चा स्कूल से लेट आता है या फ्रेंड के घर से लेट आता है तो हम कितना क्वेश्चन पूछते हैं उसको, तुम किधर गया था, क्यों गया था, किसके साथ गया था, ऐसे पूछते हैं ना अलग अलग क्वेश्चन. इट इज लाइक दैट ओनली. इंक्विजिटिव होना चाहिए. बार बार जितना हम पूछेंगे हमको एक रूट कॉज समझ में आ जाता है. जैसे हम इधर एक स्क्रीन पे देख लो, एक प्रॉब्लम क्या है, कमिंग लेट टू द ऑफिस. कोई स्टाफ ऑफिस को लेट आया तो बॉस ने पूछा लेट क्यों हुआ. उसने पहला क्या जवाब दिया, पुलिस ने पकड़ा था मुझे, ट्रैफिक सिग्नल मैंने जंप कर दिया था, रेड सिग्नल था फिर भी मैं क्रॉस करके आ रहा था, पकड़ लिया इसलिए लेट हुआ. Now, if you stop here only, you will not come to know the real cause of the problem. You have to ask why. क्यों सिग्नल तोड़ा यार तुमने? Then वो बोलेगा सर मैं लेट हो रहा था इसलिए सिग्नल तोड़ा. अच्छा भाई लेट क्यों हो रहा था? अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट क्यों हो रहा था? सर मैं लेट उठा. अच्छा लेट उठा क्या? तो लेट उठा तो क्यों लेट उठा? नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई. वो बोलेगा अलार्म बजा नहीं. फिर नेक्स्ट व्हाई, अलार्म क्यों नहीं बजाया? फिर वो बोलेगा साहब मेरा मोबाइल चार्जिंग है ना वो डाउन हो गया था इसलिए अलार्म बजा नहीं, मोबाइल का अलार्म बजा नहीं. अच्छा मोबाइल चार्जिंग क्यों डाउन था भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बोलेगा मैं रात को सोते समय चेक नहीं किया था उसको इसलिए डाउन हुआ था. अगर चेक करता तो क्या होता था, ही माइट हैव चार्ज्ड द मोबाइल, उसको मालूम है सुबह सुबह अलार्म आने वाला है इसलिए वो मोबाइल चार्ज करके सोता था. तो रूट कॉज क्या निकला इसका, बिफोर स्लीपिंग वी हैव टू इंश्योर दैट प्रॉपर मोबाइल चार्जिंग शुड बी डन. दैट इज द रूट कॉज. अगर हम पूछे नहीं तो क्या होगा, फर्स्ट जो जवाब देगा पुलिस पकड़ा था हम उधर ही छोड़ दे तो द रूट कॉज एड्रेस नहीं होता था. So we have to go on questioning till we get the root cause. जरूरत नहीं कि 5-6 बार पूछने का, ऐसा नहीं है. कभी कभी 2-3 वाई में समझ में आ जाता है, कभी कभी 7-8 वाई तक भी जाना पड़ता है. So it depends on the condition, but you have to go on asking why till you get the root cause of the problem. This is a very powerful technique है, very useful है. So one more technique is 5W1H, similar to why only. Questions क्या होता है, किधर हुआ, when, where, who, what, why, how. ये क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, वो बराबर रूट कॉज मिल जाता है. अगर कोई पुलिस क्रिमिनल का इंक्वायरी करता है तो क्या करता है वो, कब किया भाई तुमने क्राइम, किधर किया, कौन था, क्या किया, क्यों किया, कैसा किया. दीज क्वेश्चंस इससे क्या होगा, वो बराबर मुंह खोल देता है. क्राइम क्या किया था, कौन किया था, कब किया था, सब कुछ बता देता हूँ. सो वी हैव टू डेवलप inquisitive questions. 5W1H and YY. Very simple but very powerful. Next concept, lean concept is mistake proofing. Mistake proofing means कोई गलत होने का चांस है तो how we can minimize that error. That is called as mistake proofing. POCA means mistake, योके means proofing. Mistake proofing is called as POCA. जैसा अगर एक पिक्चर में आप देख सकते हो, स्टार जो शेप है ओनली स्टार का होल में ही जाएगा, दूसरा होल में नहीं जाएगा. या राउंड है तो राउंड में ही जाएगा, दूसरा शेप में नहीं जाएगा. अगर एक ही बड़ा होल रहता तो क्या होता था, एवरी शेप विल एंटर दैट होल. इससे क्या होगा, मिस्टेक अवॉइड हो गया. सिंपल अगर हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर हम मिस्टेक प्रूफिंग का हम बात करते हैं, यू कैन सी दैट मोबाइल का अगर सिम अगर देखेंगे तो एक सिम में नॉच रहता है, एक कट रहता है. उससे हमको पता चलता है सिम का डायरेक्शन क्या होता है. अगर वो कट नहीं रहता तो क्या होता था, हमको अलग अलग डायरेक्शन में सिम डाल के देखना पड़ता था, कौन सा डायरेक्शन से वो लग जाता है पता नहीं. बट ये डायरेक्शन रहने से क्या होगा, we will insert the sim only in that direction. It has avoided the mistake. Chances of mistake को जीरो कर दिया. ये हम देखते हैं बट हम रिलेट नहीं कर पाते, ये कॉन्सेप्ट को रिलेट नहीं कर पाते. सिमिलरली अगर मेमोरी कार्ड अगर देखेंगे तो मेमोरी कार्ड भी एक ही डायरेक्शन में इंसर्ट होता है. यूएसबी भी देख लो, उसमें कैसा पेन ड्राइव कैसा होता है, इट ओनली इंसर्ट्स इन द वन डायरेक्शन. अब उल्टा करके देखो जाएगा नहीं है, मिस्टेक प्रूफिंग हो गया. अदरवाइज क्या होता था, उल्टा भी करो यार नहीं लग रहा है क्या, फिर सीधा करो. मोबाइल चार्जर भी देखो एक ही डायरेक्शन में जाता है, दूसरा डायरेक्शन में नहीं जाएगा. That is mistake proofing. So these are various techniques of mistake proofing. हमको जिधर जिधर हमको प्रॉब्लम होता है, we have to think of a concept or tool. यार मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए तो क्या कर सकता हूँ मैं, we have to think in that way. जैसा पहले का अगर आयरन देखेंगे प्रेस का, पहले कितना कॉइल जलता था क्योंकि उसमें कंट्रोलर नहीं था. अभी क्या हो गया, कंट्रोलर आ गया, बराबर ओवर हीट हो गया तो अपने आप ऑफ कट ऑफ हो जाता है. इससे कॉइल जलने का चांसेस बंद हो जाए, मिस्टेक जो होता था अवॉइड हो गया. या गाड़ी का जो डिस्प्ले है फ्यूल का वगैरह,
There is also mistake proofing tools है, डिस्प्ले भी है, विजुअल मैनेजमेंट में भी है, बट देयर आर मिस्टेक प्रूफिंग आल्सो. फ्यूल खत्म होने से पहले हमको इंडिकेशन भी देता है, या मैंने सीट बेल्ट पहना है तो पहना नहीं तो क्या होगा कार का, वो बजर आता रहेगा. जब तक मैं सीट बेल्ट पहनता नहीं है बजर आता रहेगा. So it avoids mistake. Otherwise, without seat belt also I can drive that. So these are the tools and techniques which avoid chances of mistakes. Next powerful concept is 80-20 rule. ये Pareto analysis भी बोलते हैं इसको. We have to focus where we can get 80% of the result by just putting 20% of the effort. बहुत लोग क्या बोलते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, काम करता है, but they don't get result because they are not following this technique. They are putting 80% of the effort to get 20% result. You are getting it? You are putting 80% of the effort to get 20% of the result. But if you put only 20% of the effort to get 80% of the result, then you are the smart working. इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला, we have to work smartly, not hard working. Hard working से ज्यादा we have to focus on smart working. That's what is 80-20 rule of Pareto analysis. Next concept is brainstorming. This is also very powerful tool. कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर मैं खुद बैठ के उसकी सॉल्यूशन सोचूंगा तो मैक्सिमम आई कैन थिंक ऑफ 4-5 सॉल्यूशंस. अगर मैं 2 आदमी 3 आदमी मिलके करेंगे तो क्या होगा, इट इज नॉट 5-5-5. 3 आदमी है तो 5-5-5 15 सॉल्यूशन नहीं आएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड. एक्चुअली दैट इज कॉल्ड एज व्हेन ब्रेन्स कम टुगेदर, दे जस्ट डोंट गेट एडेड, दे गेट मल्टीप्लाइड बोलता है. सो 1 + 1 इज नॉट 2, इट इज 11. सो कोई भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम घर में चर्चा करते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो व्हाट वी डू, वी सिट टुगेदर, वी डिस्कस वेरियस ऑप्शंस, वेरियस सॉल्यूशंस, देन वी फाइंड आउट द पिक अप द बेस्ट सॉल्यूशन. सो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली वी हैव टू थिंक ऑफ कंडक्टिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन टू गेट बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट इफेक्टिव आइडिया. Another concept is QC tools. 7 QC tools बोलता है. This also we use in our day-to-day life also. The 7 QC tools, Japanese का belief क्या है, if we use these tools, 95% of the problems can be solved by using these tools. They are mainly process flow chart है, check sheet है, histogram है, Pareto analysis है, already discussed about Pareto, cause and effect diagram है, scatter diagram है, control charts है. So if we apply, मतलब हर जगह सभी लागू नहीं होगा, it depends on the situation. कोई check sheet से काम हो सकता है, कोई histogram से काम हो सकता है, कोई process flow chart से काम हो सकता है, depends on the situation, depends on the problem. But we should learn all these 7 QC tools. जो भी प्रॉब्लम है we can apply. जैसा चेक शीट आपने देखा रहेगा, हाउसकीपिंग वाला जो रहता है मॉल में देखता है ना, चेक शीट जो जो काम हो टिक करता जाता है, क्या हम घर में भी यूज करते हैं, क्या क्या काम हो भाई, मेरा पेंडिंग लिस्ट क्या है, मैं टिक करता रहता हूँ, दैट्स चेक शीट. उससे क्या होगा, कौन सा मेरा काम पेंडिंग है मुझे पता चलता है, कौन सा नहीं हो वो भी पता चलता है. सिंपल टूल्स है, बट विल कम टू नो क्या पेंडिंग है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है करके. नेक्स्ट इफेक्टिव लीन टूल इज ISO सिस्टम. ISO भी इंडस्ट्री में बहुत जगह अप्लाई करता है, बट दे डोंट इम्प्लीमेंट इट सीरियसली. ओनली सर्टिफिकेशन लेने के लिए इसको करता है, बट अगर इसको प्रॉपरली अगर तरीके से इम्प्लीमेंट किया तो क्या होगा, वी कैन गेट वंडरफुल रिजल्ट्स बाय ISO सिस्टम आल्सो, बिकॉज वी विल सेट द SOPs बराबर हम लिखते हैं, बराबर फॉलो भी होता है, ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, रिव्यू मीटिंग्स होता है. ये पावरफुल, इतना पावरफुल टूल है. वी हैव टू यूज दिस टूल properly, ISO system, not for the certification, not for the audit, but अपना खुद का ग्रोथ के लिए अगर हम इसको यूज करेंगे तो it will give us wonderful results. So we have to focus on ISO implementation also. Next एक lean tool है, that's MS Excel. Why it is important means बहुत सारे Excel अगर हमको मालूम है day to day life में, अगर if I know Excel, I can work in a better way. I can manage my work properly, effectively. बहुत सारे data analysis tools है, बहुत सारे graphical analysis होता है. अगर ये मुझे आता है तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, मेरा काम का efficiency बढ़ जाएगा, मेरा follow up बढ़ जाएगा. ये smart working है. अगर otherwise I have to work hard, I have to do hard working. If you want to really do smart working, then we have to learn Excel tools and techniques which are very much useful. अपना पर्सनल लाइफ में भी काम आ गया, मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेज कर सकता हूँ मैं इसको, पर्सनल सेविंग्स को ये कर सकता हूँ, जो भी मेरा प्रोफाइल है पर्सनल मेंटेन कर सकता हूँ, या कंपनी में भी काम आएगा. सो एक्सेल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल व्हिच वी शुड लर्न. अनदर इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इज सजेशन स्कीम. सजेशन स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है बोलो तो, अगर हम दूसरे का अगर आइडिया नहीं लेता है तो देन अपना थिंकिंग ब्लॉक हो जाता है. बट इफ यू टेक द आइडियाज ऑफ अदर्स, सजेशंस ऑफ अदर्स, देन वी कैन अचीव लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स.
स्पेशली कंपनी में क्या होता है, जो मशीन पे काम करता है वर्कर्स, दे नो बेटर देन एनीबडी एल्स, बिकॉज मशीन का पूरा उनको मालूम रहता है क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है. If you don't involve them, if you don't involve the employees, then we will not achieve improvement. So to involve the employees, we have to establish suggestion system. सजेशन सिस्टम भी ऐसा है, बहुत सारा कंपनी में हमने देखा हुआ है, इट इज ओनली फॉर द सेम नेम से के लिए एक सजेशन डब्बा रहता है बट खाली रहता है. We have to have a system. We will do that implementation also. How to implement this system very effectively. इससे क्या होगा, you will get wonderful result. Without doing investment, you get so many creative ideas. You will achieve wonderful results also by suggestion scheme. So we have to focus on suggestion scheme implementation also. It is applicable everywhere. Now, so far we have discussed about technical skills. Okay. Now in the life, you see, technical skills are very less useful, but more of our life is built on soft skills. जैसे अपना इंजीनियरिंग हमने किया, एमबीए किया, बहुत सारे भी हमने डिग्री किया, डिग्री का नॉलेज हमको कितना यूज हो रहा है कॉर्पोरेट में? हार्डली, वेरी वेरी मिनिमम. आई से बहुत लोग जो अपना डिग्री अलग रहता है, करते कुछ और है. सो टेक्निकल स्किल जो है वो बहुत कम आता है हमारा लाइफ में. जो मेन जो काम आता है, इट्स ओनली ऑन सॉफ्ट स्किल्स. इस अगर टेक्निकल स्ट्रांग हो, सॉफ्ट वीक है, तो आई विल बी फेलियर इन द my life also. But if my soft skills are good, then I can मतलब लर्न कर सकता हूँ मैं टेक्निकल में, या मुझे आता नहीं तो मैं किसी को भी हायर करके करवा सकता हूँ, बट आई शुड हैव गुड सॉफ्ट स्किल्स also. So soft skill is also very very important for our growth as well as improvement in the personal as well as professional life. Soft skills में mainly क्या होता है, which are life skills. I can say these are life skills also. Main soft skills which are useful in our life are communication skill, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत बार हम क्या होता है, मुझे आता है बट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं हूँ वो चीज का, वो काम का, वो भी एक प्रॉब्लम है. टीम वर्क, टीम वर्क में हम रहते नहीं है. टाइम मैनेजमेंट करते नहीं हम लोग, फॉलो नहीं करते. सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते. मिस्टेक हुआ तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते. मल्टी स्किलिंग करना नहीं चाहते. मैं दूसरा चीज को मैं सीखना नहीं चाहता. मैं साल भर 10 साल 20 साल एक ही काम में रहना चाहता हूँ. देन हाउ आई विल इम्प्रूव? मैं खुद का डेवलपमेंट भी नहीं करना चाहता. मेरा मल्टी स्किलिंग नहीं, दूसरा स्किल सीखना नहीं चाहता, तो हाउ आई विल इम्प्रूव? एंड लास्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो दीज आर इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स व्हिच आर वेरी यूजफुल इन आवर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ. मैं ब्रीफ में टच करूंगा कुछ कुछ. जैसा कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत बार सब कुछ आने के बाद भी दे फेल इन द इंटरव्यू ऑल्सो, दे फेल इन द एग्जाम. दिन रात पढ़ाई करता है बट एग्जाम टाइम पे क्या होता है, communication is not just oral. It is oral है तो oral भी, written है तो written भी. They don't properly communicate their thoughts, their ideas, their knowledge to the other person, तो उधर fail हो जाते हैं. So communication we have to improve a lot. This is a very basic skill. Most of the life problems are because of our poor communication skill. Either in personal life में देखो या husband wife के बीच में भी देखो, communication problem है तो everything problem. Communication अगर smooth है, then even we can face the biggest problems also very smoothly. So we have learn these techniques also. For 5W1H tool of communication. What is that tool? We should learn what to say, when to say, why to say, where to say, whom to say and how to say. क्या बोलने का है, कब बोलने का, क्यों बोलने का, किधर बोलने का, किसको बोलने का, कैसा बोलने का. अगर ये चीज अगर हमको आ गया तो हमारा कम्युनिकेशन परफेक्ट रहेगा. बहुत बार हम क्या होता है, गलत चीज गलत जगह पे बोल देते हैं, सही चीज गलत आदमी को बोल देते हैं, सही चीज गलत टाइम पे बोल देते हैं, होता है ना बहुत बार, या सही चीज गलत तरीके से बोल देते हैं. स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा क्या होता है, वाइफ का एक कंप्लेंट क्या रहता है, आप बहुत रैशली बात करते हैं, या बराबर समझाता नहीं है, होता है ना. दिस ऑल हैपेंस विद एवरीबॉडीज लाइफ आल्सो. सो वी हैव टू कल्टीवेट दिस हैबिट ऑफ 5W1H communication tool. What to say, when to say, why to say, where to say, whom to say, how to say. Okay. अगर ये चीज को हम, ये धीरे धीरे आएगा, एक ही दिन में नहीं आएगा, बट हम इसको कल्टीवेट करेंगे तो वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ आवर लाइफ प्रॉब्लम्स आल्सो. अगर कम्युनिकेशन में अगर हम देखेंगे, बोलते समय वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर ब्रेन एंड टंग इज कनेक्टेड. बहुत बार लाइफ का प्रॉब्लम यही होता है, जो बोल रहा है या माइंड में जो है वो कनेक्ट ही नहीं रहता, तो गड़बड़ हो सकता है ना, ब्लास्ट ही होता है बहुत बार. सो वी हैव टू नो इट शुड बी कनेक्टेड. जो माइंड एंड टंग शुड बी कनेक्टेड सो दैट 5W1H का कम्युनिकेशन बराबर अप्लाई होगा, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट आल्सो.
Now about written communication, that's also very important. Written communication में बहुत लोग मार खाते हैं. जैसे एग्जाम में भी देखो, अगर ओरली पूछो तो सब बताता है, बट राइट बोलो तो लिख के आ जाओ बोलो तो लिखना आता नहीं उसको, तो इसलिए उसको हमेशा कम भी मार्क्स आता है. क्यों आता है? बिकॉज वी आर नॉट इम्प्रूविंग अवर रिटन स्किल्स आल्सो. नाउ इफ यू सी इन दिस एग्जांपल, रोको मत, कॉमा है, जाने दो. फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? रोको मत, जाने दो. लेट हिम गो, डोंट स्टॉप हिम. अगर मैं कॉमा थोड़ा पीछे लगा दिया तो क्या होगा? रोको मत, जाने दो. द मीनिंग इज 180 डिग्री अपोजिट. वर्ड सेम है बट एक कॉमा से क्या होगा? मीनिंग 180 डिग्री अपोजिट होता है. तो कम्युनिकेशन में ये है, हमारे मन में वही रहता है, कोई कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी, सब सिंबल्स अगर गलत यूज किया, गलत तरीके से लिख दिया, गलत ग्रामर यूज कर दिया तो क्या होगा? मीनिंग कुछ और हो जाता है. बहुत बार इसके लिए चक्कर में बहुत बार कंपनी में हम देखते हैं अच्छा प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि द प्रपोजल बी सेंट टू द मैनेजमेंट क्या होगा? इट इज नॉट इंप्रेसिव, इट इज नॉट, एक देख के उसको मैनेजमेंट को प्लीजेंट नहीं लगता, देन अच्छा आइडिया भी ये हो सकता है, सो रिजेक्ट हो सकता है. सो वी हैव टू improve our written skills also. In the communication pyramid, what is important is only we communicate 7% by the words. This is a communication pyramid, but 38% depends on the tonality. मेरा tonal variation क्या है, ऊपर नीचे कैसा हो रहा है, मेरा voice variation कैसा हो रहा है, that is important. And more than that, मेरा body language, whether I am connecting to the audience, whether I am connecting with the opposite person or not, that is very very important. Body language और physiology बोलते हैं. इफ मैं सिर्फ खड़ा होके एक तरफ देख के अगर बोलूं तो आर वी कनेक्टेड, गेट कनेक्टेड विद ईच अदर? नहीं, वी कैन नॉट कनेक्ट विद ईच अदर. ओके, सो वी हैव टू कनेक्ट विद ईच अदर. फॉर दैट बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, जेस्चर्स बोलता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलता है. व्हाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? वी कम्युनिकेट अ लॉट विदाउट सेइंग थिंग्स आल्सो. बहुत लोग हम बोलते हैं ना, उसका आवाज से हम पहचान जाते हैं वो दुखी है क्या सुखी है. द वे ही रिस्पॉन्ड्स, या इतना धीरे से बोलता है, या एक डल सा बैठा रहता है, हमको वो बॉडी लैंग्वेज से हमको पता चलता है whether he is happy or sad. So body language communicates 55%, 38% tonal variation, and only we communicate 7% by our words. So how much important is non-verbal communication? We have to improve our non-verbal also. Next tool is teamwork. बहुत ऑर्गेनाइजेशन या बहुत जगह घर में भी देखो टीम नहीं रहता. एक भाई के अंदर एक भावना नहीं है, भाई बहन के अंदर नहीं है, बच्चों के अंदर नहीं है, पता ना, ये टीम की भावना ही है. वी आर एक, हम सब एक ही, वो फीलिंग ही नहीं रहता. बहुत झगड़ा भी होता है. तो टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर व्हेन देयर इज अ टीम वर्क का भावना है तो ही अचीव हो सकता है, अदरवाइज वी कैन नॉट अचीव मोर. टीम वर्क नहीं है तो गया काम से. हमारा नॉलेज होने के बाद भी वी आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज देयर इज नो टीम वर्क. उधर ईगो इश्यूज ज्यादा आ जाता है. देयर इज नो टीम वर्क. मेरा ईगो क्या आता है? सामने वाला हारना चाहिए, ये मेरा ईगो आता है. ऐसा नहीं कि मैं हारा तो भी चलेगा, टुगेदर वी हैव टू विन, ये भावना आता नहीं है. मैं जीतना चाहिए या सामने वाला हारना चाहिए. अगर यही प्रायोरिटी हो जाता है विद इन द ग्रुप, बोल रहा हूं मैं, नॉट बिटवीन द ग्रुप्स, विद इन द टीम, ये भावना आ गया तो क्या होगा? यार मैं तो गया, यार मेरे साथ साथ वो गया तो भी चलेगा. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो टीम भावना नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन भी, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, मेनी गुड वेल रनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टॉप्ड. देयर इज नो teamwork at the top management also, not in the bottom. I'm saying the top management also, finance head and operation head के बीच में ये नहीं है, मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में टीम का भावना नहीं है. सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ देयर इज नो टीम वर्क और टीम बिल्डिंग का भावना ही नहीं है. सो दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, देन सक्सेस टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ. अगर मैं एक जगह घूम रहा हूँ, जैसे बुलक कार्ट रहता है ना, बुलक कार्ट में अगर दोनों पहिया एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एक ही स्पीड पे घूम रहा है तो जाएगा. अगर एक पहिया क्लॉकवाइज एक पहिया एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा? Does it move? वो उधर ही रुक जाएगा. It is like that only. So we have to move together, then only we can achieve wonderful results. Time management. टाइम मैनेजमेंट बहुत बार हम फॉलो नहीं. प्रोक्रास्टिनेशन, बार-बार उसको पोस्टपोन करते रहने का, उससे क्या होगा? आगे जाके हमको वो सब इकट्ठा हो जाता है, ऑल द पेंडिंग ऑफ, देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, वी गेट डिप्रेस्ड, वी गेट स्ट्रेस. ये होता है. सो वी हैव टू फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट आल्सो. इट इज ऑल टारगेट ओरिएंटेड. कोई भी कंपनी का काम है या सेल्स पर्सन है, वी हैव ऑल टारगेट्स. यार इतना दिन में इतना सेल्स होना चाहिए, इतना टन सेल होना चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए. दिस आर ऑल टाइम मैनेजमेंट. वी हैव टू अचीव दोस टारगेट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. ऐसा नहीं कि जब होगा देखा जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, सो वी हैव टू फोकस ऑन मैनेजिंग द टाइम आल्सो. ये स्किल भी इंपॉर्टेंट है. लोग टाइम के ऊपर फोकस नहीं करते हैं तो क्या होगा? इधर अपोजिट पर्सन विल लूज द इंटरेस्ट
or else he will lose the opportunity also. So time management we have to learn. That's also very important because time is money, what we say. But time management अगर ये सब हम follow नहीं करेंगे तो gradually क्या होगा? I already told you, we come under stress. If you don't apply our smart working technique, we gradually come under stress. कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है मेरा पर्सनल परफॉर्मेंस पोर है, उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, या पर्सनल रिलेशनशिप खराब है उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है. कुछ भी कारण से इफ यू कम अंडर स्ट्रेस क्या होगा? वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म इफिशिएंटली. तो लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंप्लीमेंट भी नहीं होगा. मैं स्ट्रेस में हूं तो आई कैन नॉट वर्क विथ माय फुल डेडिकेशन, फुल एफिशिएंसी. सो वी हैव टू ओवरकम स्ट्रेस. स्ट्रेस वी कैन नॉट मेक इट जीरो, वी हैव टू लर्न टू हैंडल द स्ट्रेस. कोई अगर बोलता है स्ट्रेस मैनेजमेंट से आपका पूरा स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल. स्ट्रेस विल बी देयर, ओनली थिंग इज वी हैव टू लर्न टू हैंडल स्ट्रेस. अभी क्या होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में? स्ट्रेस ज्यादा होके वो हमारे ऊपर हावी होता है. व्हाट वी हैव टू डू इज हम इतना स्ट्रांग होना चाहिए अंदर से, हम स्ट्रेस के ऊपर हावी होना चाहिए. दैट्स व्हाट वी हैव टू learn to manage the stress. Stress cannot be zero, stress will be there, and to some extent stress is beneficial for our life also. Otherwise क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा. ऐसा होता है. स्ट्रेस ही नहीं है तो it is positive, we have to take it in a positive way. It helps us to push further. But ऐसा नहीं कि वो हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए. वो क्या होता है, वो शिप में अगर एक छोटा सा होल भी हो जाएगा तो धीरे धीरे पानी अंदर जाके पूरा शिप को डुबा देता है. स्ट्रेस भी वैसा ही है. जैसे वो अपना अंदर जाना चालू हो गया तो हमको आगे जाके डुबा देता है. We go under depression, we go under medication, ये होके ultimately it मतलब horrible ऐसा होता है कि brings us to the point of suicide also. Many times we have seen that. तो stress इतना खराब है, खतरनाक है. So we have to learn to handle the stress. Stress will be there, but we have to only learn to handle it. So ये सब अगर हम करेंगे, इसको हम बोलते हैं total quality management. Means quality in everything, quality in our behavior, quality in your talking, quality in your dressing, quality in your thoughts, quality in your dressing. हर चीज में quality होना चाहिए. That's what is total quality management. ऐसा नहीं कि quality में तो only product quality या service quality नहीं है. हर चीज में quality होना चाहिए. और quality कैसा होना चाहिए? Do the right things, right the first time and every time. इसका मतलब क्या है? हर चीज सही करो, पहली बार करो और हमेशा करो. That's what is TQM is. The TQM का कॉन्सेप्ट सिंपल इतना ही है. हर बार सही करो, पहली बार सही करो और हर बार सही करो. That's what TQM is. ये सब अगर हम अप्लाई करेंगे, it becomes a TQM. Now, so far what we have discussed is lean manufacturing concept के अंदर हमने this is all TQM also. What concepts we have discussed now? 5S डिस्कस किया हमने, PDCA डिस्कस किया, प्लान डू चेक एक्ट, काइजन डिस्कस किया, पोको AK that is mistake proofing, Lean Six Sigma, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई दैट इज SMED, जस्ट इन टाइम. मतलब जो जरूरी है तभी उतना अमाउंट उतना ही मेंटेन करने का, अदरवाइज पैसा वेस्ट हो जाएगा. TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, विजुअल मैनेजमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स जैसे वाइवा एनालिसिस, 5W1H, परेटो एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब हमने सीखा. ISO सिस्टम्स के इंपॉर्टेंस देखा हमने. एक्सेल टूल्स, MS एक्सेल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सजेशन स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स. These are very very important lead goals. एक एक टॉपिक एक्चुअली इनफैक्ट ये एक दिन दो दिन का प्रोग्राम होता है, बट जस्ट 1 hour आई हैव टू कंबाइन ऑल दिस. एक मतलब एक ट्रेलर है एक्चुअली, इट्स नॉट अ फुल कांसेप्ट, इट्स ओनली अबाउट ट्रेलर. ओके, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में लागू किया तो चलेगा क्या? नहीं है. दिस लीन मैन्युफैक्चरिंग या TQM कल्चर जो है वी हैव टू इंप्लीमेंट अक्रॉस आवर सप्लायर्स आल्सो एज वेल एज टुवर्ड्स आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स. तभी इसका इम्पैक्ट रहेगा. अगर मैं अकेला अच्छा है तो नहीं चलेगा. मेरा आजू बाजू वाला, मेरा रिलेटेड जो लोग है, वो लोग भी अगर अच्छा है, वो लोग भी एफिशिएंट है, देन ओनली आई एम एफिशिएंट. अगर घर में भी अगर हम 5 लोग रहता है, एक अगर बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या 4 लोग खुशी से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना. सिमिलरली इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी. सिमिलरली जो हम लीन मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी हम कॉन्सेप्ट है, ऑल दिस इंप्रूवमेंट कॉन्सेप्ट, वी हैव टू इन्फ्लुएंस आवर सप्लायर्स, वी हैव टू इन्फ्लुएंस आवर vendors, we have to influence our customers also. So all ये together एक पूरा chain होता है. That's why every organization is focusing on the entire supply chain total में, not just OEMs. It is our customers as well as suppliers. Then only इसका benefit जो है multiply हो जाएगा. Okay, because हमारा supplier अगर इसको मालूम जानता है, he will supply good quality material to us. मेरा customer उससे जानता है, then he will put positive pressure on us also to supply in a better way. So ये पूरे cycle होता है. So we have to focus on our entire supply chain about this.
After this training is over, what we will do is we identify the improvement project where we use these learnings, all these tools and techniques we apply. We identify critical project, पहले 10 प्रोजेक्ट्स हम ले लेंगे, देन उसके बाद तो पढ़ रहते हैं उसमें सभी प्रोजेक्ट प्रायोरिटी नहीं रहेगा, मे बी कुछ प्रोजेक्ट अभी फिजिबल रहेगा बट हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा. सो वी हैव टू शॉर्टलिस्ट देम, लाइक Pareto एनालिसिस मैंने बोला 20% एफर्ट से आपको यू शुड गेट 80% रिजल्ट. सो ऐसा प्रायोरिटाइज करके वी हैव टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट वेयर एफर्ट इज लेस, investment is less, but the result is more, the impact is more. Investment should be less, impact should be more. That's how we have to decide on the project selection. Then we'll work on the projects. Now we'll see the benefits of lean manufacturing. So far we have discussed about the lean manufacturing. What are its benefits? Lean manufacturing एक ओवरनाइट जर्नी नहीं. आज ट्रेनिंग हो गई तो कल से कल उसका बेनिफिट मिलता है, ऐसा नहीं है. जैसा हम एक पेड़, बड़ा पेड़ होने के लिए, फ्रूट होने के लिए क्या होता है, अगर हम सीड डाल देता है, then it takes years together, then it starts giving स्वीट फ्रूट्स. जैसा मैंगो ट्री होने के लिए सालों लग जाता है ना. सो ऑल दिस कल्चर्स, एक कल्चर बिल्ड होने के लिए लग जाता है, टाइम लगता है. ऐसा नहीं कि यार मैं कल ट्रेनिंग किया था, मेरे एक बैच का आज से रिजल्ट आना चाहिए. इट डजंट हैपन लाइक दैट. फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक 3 मंथ, 6 मंथ, एक साल के बाद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चालू हो जाएगा. ये घर में भी है, अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो घर का कल्चर भी ग्रेजुअली चेंज हो जाएगा. सो इसका फ्रूट्स मतलब बेनिफिट्स क्या क्या है? इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी में इंप्रूवमेंट होता है. तो अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट में ये सब हुआ तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा. इससे अल्टीमेटली क्या होगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा. बेटर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, लोग जो एम्प्लॉइज है अच्छी तरह से काम करेंगे. अगर ये टेक्निक्स हम अप्लाई करेंगे अपने स्कूल्स में, अपने घर में भी, तो अपना आजू बाजू लोग या बच्चे भी खुश रह पाएंगे. सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर हो जाएगा एंड अल्टीमेटली अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा. उससे दिस आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग. नाउ so recap में we have already seen what we have covered is all these tools and techniques what we have discussed in brief. ये trailer है, it's not detailed. Okay, in 1 hour I could only cover the definition, you can say. I would say the definition of these concepts which are very useful in our personal life. They have to go in detail also. So this comes to the end of my time. So if any questions we can discuss. Over to Preeti now. This is about from my side. Thank you so much, sir, for taking this very informative webinar for all of us to do much more with much less. Thank you, sir. Yeah, lean manufacturing, much more with much less. Okay, hope it will add 1% to your life. Then the purpose of Absolutely, this sir. webinar is- Absolutely. So I think the feedback is really good. So thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much, Preeti ji.